Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon, Sanju, Komal, Anuranjan, Honey. Good afternoon. God bless you, Rahul. Good afternoon, Ashna. Yeah, good, Kamal. I'm slowly recovering. I'm recovering. I think by day after tomorrow, I should be much better. You know, viral fever always takes 7 days and it leaves behind a trail of problems. So it's okay. Good afternoon, Palak, Madhur, Radhe Radhe. Yes, Madhura, मैं रिकवर कर रहा हूँ. 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. Sparsh, good afternoon. Yes, thank you. Good afternoon, Ajay. Good afternoon, Palka. Good afternoon, Xenia. Thank you. Good afternoon, Amiteshwar. Good afternoon, Bharat, Garima, Sanjay. Yeah, I hope everybody's joined. We'll start. Sat Sri Akal, Kulveer. Sambhavna, good afternoon. Samiksha, God bless you. Thank you for your flowers, both of you. Oh, अच्छा. सी भरत बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड के आसपास उससे पहले ही शायद मेरे सब्जेक्ट्स तो खत्म हो जाएंगे बट देन शीतल मैम एंड प्रिया मैम विल कंप्लीट द बैच अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 10 जुलाई या 12-13 जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए फिर वी विल प्रॉब्ली गिव यू 3-4 days हॉलीडे एंड देन वील स्टार्ट ऑन 15th जैसे उनका बैच खत्म होता है. Payal, good afternoon. Ridhima, good afternoon. My blessings always there. Yes, Ridhima, I'm better. Thank you. Yes, Amiteshwar, I'm recovering. Viral always takes a lot of time. I mean, from 104 degrees हो जाता है. कोई बात नहीं. It's a part of life. हाँ, भरत आयल्स अब डिपेंड करेगा. मुझे लगता है कि 15 जुलाई को शायद शुरू कर पाए. Let's see. Good afternoon, Manisha. Thank you, Manisha. Thank you, beta. Sarvesh, good afternoon. Anjali, good afternoon. Okay, Bharat, let us see. Let us see how things are placed. We'll give you a week's holiday. I think it's needed also because the January batch has had no holiday. In July batch who want to continue, would naturally एक साल हो गया उनको. They would also need to have 1 week's holiday. I'll do something about it. Chaliye, I hope everybody's joined. No time to waste. Let's continue. In my last lecture, we were dealing with bail. And we had seen that in my previous lecture, we have seen that mota we can divide offenses into two parts.
the bailable offences where bail was a right, and non-bailable matters in which bail was not a right but the word was may be granted. वहां पे shall be granted था, यहाँ पे may be granted. We went on to discuss the details of bailable offences, including a new section which was added because of Hussain Ara Khatun, जहाँ पे आधे पीरियड के बाद या 1/3 period as the case may be, they shall have to be released subject to certain conditions. And then yesterday we saw in detail a very important section which was dealing with non-bailable matters. उसमें हमने बहुत डिटेल्स देखे, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखे, यहाँ तक कि ये भी देखा सबसेक्शन 6 में कि अगर ट्रायल शुरू होने के बाद 60 days में magistrate does not complete the trial, then he has to release on bail. In other words, हमारे पास दो तरह के बेल्स हैं. एक तो डिफॉल्ट बेल था जो हमने देखा था 187 में, और अब ये एक बेल है हमारे पास 480 BNS के सबसेक्शन 6 में, जो मेरिट्स पे नहीं है बट जो डिले की वजह से है. सो दो हमारे पास ऐसे मैटर्स हैं 187 में और 480 में जहां पे डिले गिव्स यू अ राइट ऑफ बेल. कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया. वी सॉ लॉट ऑफ जजमेंट्स आल्सो. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन ऑल दोस मैटर्स. yes अनुभव. if I told you, मैंने कल बताई थी ये बात कि अगर थोड़े छोटे वाले ऑफेंस के लिए बेल मिल है और बड़ा टर्न आउट होता है तो दोबारा बेल लेनी पड़ेगी. दैट विल बी इनफ्रक्चुअस अगेंस्ट द मोर सीनियर ऑफेंस. चलिए, नाउ वी गो ऑन टू सेक्शन 481. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर टिल नाउ. कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत सारे एस्पेक्ट से बहुत सारे मैटर्स 480 में कवर्ड थे. आई होप सबने अपने नोट्स बना लिए होंगे. जब मैं आता हूं 481 में, ये दिस वाज एडेड बाय द 2008 अमेंडमेंट एक्ट, और ये बेसिकली एक प्रोसीजर का मामला है कि जैसे ही ट्रायल खत्म होने वाला होता है तभी बेल ले ली जाएगी अपीलेट कोर्ट की. लेट्स सी दिस सेक्शन. बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील. So before conclusion of the trial and before disposal of the appeal, the court trying the offense or the appellate court as the case may be, by chance अपील आप कर रहे हो और अपील के बाद आप कन्विक्शन कर रहे हो और आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो, दोनों मामलों में ये चीज अप्लाई करेगी. He shall require the accused to execute bail bonds with sureties, to appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bail bonds shall be in force for 6 months. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि बाद में कहां ढूंढते फिरेंगे. दोनों को फायदा है, कोर्ट को भी फायदा है और एक्यूज को भी फायदा है. तो आप मेरे से पहले ही बेल बॉन्ड भरवा लेंगे ताकि अब आपको बेल बॉन्ड दोबारा हायर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. हाउएवर ये बेल बॉन्ड सिर्फ 6 महीने तक वैलिड होंगे. इफ सच अक्यूज फील्स टू अपीयर देन द बॉन्ड शैल बी फॉरफिटेड, और जो प्रोसीजर है आगे 491 में आएगा वो फॉलो होगा. सो ये जो अपना सेक्शन है 481, दिस इज अ सेक्शन ऑफ इंटरव्यू. खास ख्याल रखना कि कल को आप सपोज दे विल आस्क यू कि सपोज आप कोई ट्रायल कर रहे हो और ट्रायल के बाद आप खत्म कर रहे हो तो क्या कोई बेल लोगे उससे? लोगे. सो जब आप ट्रायल कंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप एक्यूज को कहेंगे कि बेल बॉन्ड भरो. फॉर व्हाट? टू अपीयर बिफोर द हायर कोर्ट. अब वो नहीं जाए उसकी मर्जी है, पर हमने तो बेल बॉन्ड भरवा लिया. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. ये जैसे कि मैंने बोला, ये क्योंकि टाइम वेस्ट होता था तो 2008 में दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड. And I hope everybody is clear on this. We now go on to another very important section, which is section 482,
BNSS, corresponding to section 438 of CRPC. We are now dealing with what we call anticipatory bail. बहुत लोगों को एक गलत फहमी है कि एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि आई कैन नॉट बी अरेस्टेड. गलत. एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है यू विल बी अरेस्टेड बट योर नॉन बेलेबल ऑफेंस बिकम्स अ बेलेबल ऑफेंस. यानी कि आपको राइट टू बेल है. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम समटाइम्स इन द इंटरव्यू आल्सो. वो गलत बोल जाते हैं. So anticipatory bail does not mean that I am protected from being arrested. Only thing is, in the event of being arrested, even in a non-bailable case, I shall get bail as a right. जहां तक एंटीसिपेटरी बेल का सवाल है, ये हम सिर्फ हम हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को ये पावर देते हैं. सेशन कोर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स एडिशनल सेशन जज. एंटीसिपेटरी बेल एक अलग तरह की बेल है जहां पे आपको लगता है कि एक आदमी को गलत फंसाया गया. जस्टिस डिमांड्स कि उसको बेल मिले, नॉन बेलेबल में फंसा दिया. इसके ऑब्जेक्ट के बारे में आई वुड लाइक टू कोट द लॉ कमीशन. एंटीसिपेटरी बेल पे बहुत बार आते हैं मेंस में क्वेश्चंस. सो प्लीज स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एज गिवन बाय द लॉ कमीशन. The necessity for granting anticipatory bail arises mainly because sometimes influential persons try to implicate their rivals in false cases for the purpose of disgracing them or for other purposes by getting them detained in jail for some days. इसीलिए ये बेस बनता है एंटीसिपेटरी बेल का. So naturally, this section applies to all non-bailable offences and not only offences which are punishable with death or life imprisonment. हर non-bailable offense इसके अंदर आता है. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है. क्या एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ उन ऑफेंसेस में दी जाती है जहां डेथ या लाइफ है? नहीं. हर नॉन बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल मांगी जा सकती है. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, बेलेबल जैसे कि मैंने बोला, इसका इफेक्ट क्या है एंटीसिपेटरी बेल का? नॉन बेलेबल को बेलेबल में कन्वर्ट कर देता है. तो ऑटोमेटिकली दिस सेक्शन विल नॉट अप्लाई टू बेलेबल ऑफेंसेस. दिस क्वेश्चन हैज कम. सो एंटीसिपेटरी बेल नेचुरली बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं मांगी जा सकती. आई एम कोटिंग ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. Krishna Kumar versus State of Assam, 1998 Supreme Court. Okay. Now, जब भी मुझे एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करना है, I can't move on a possible accusation कि जी वो मेरे खिलाफ केस करने वाला है. In other words, an accusation must exist and there must be apprehension of arrest. ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. एंटीसिपेटरी बेल में क्या क्या चीजें कंसिडर की जाती हैं? सेम चीजें जो एक ऑर्डिनरी बेल में की जाती हैं. In other words, nature and seriousness of the accusation, ऑफेंस की सिवियरिटी क्या है, एविडेंस मोटा मोटा क्या है, प्राइमा फेसी क्या है, कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज क्या है, चांसेस ऑफ हिज एब्सकॉन्डिंग क्या है,
possibility of his repeating the crime, and most important, interest of the people or the state. ये बेसिक रीजन होते हैं जो एंटिसिपेटरी बेल डिसाइड करने में डिसाइड करते हैं. This section gives wide discretion to session courts and high courts, and that is why this is the reason why just like bail, you cannot have set laws. Similarly, for anticipatory bail, you cannot have what we call straitjacket rules. Each case differs from case to case, and that is the reason why each matter must be decided on its own merits. यहाँ पे आई एम कोटिंग सावित्री अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने अभी बताई है. यहाँ पे इट इज पर्टिनेंट टू से कि जो सबसे लैंडमार्क केस है और 10 बार इंटरव्यू में पूछा गया, वो एक बहुत पुराना केस है और वही बार बार रीइटरेट होता है. वो है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट. ये सारी गाइडलाइंस जो हैं ये उसमें दी गई थी. गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. यस अनुभव, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन. इसमें इस गुरबख्श सिंह में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट आर ऑलवेज इट्स देयर डिस्क्रिशन. It is their discretion to grant or not to grant the anticipatory bail. और उनको डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या होगा, जो हमने कल सेक्शन पढ़ा था 480. डिटर्मिनेशन वही होगा जो 480 के पैरामीटर्स दिए गए हैं, मोर और लेस पैरामीटर्स वही हैं. गुरबख्श सिंह में एक बात और कही गई थी, दैट द प्रोसीजर शुड बी फेयर and as per Article 21 of the Constitution. That is the reason why it is a judicial exercise, a judicial discretion. It's a judicial exercise with great care and caution. Okay. Now, अभी इसका क्या होता है कि एक तो मिसयूज बहुत होता था कि लोग भाग जाते थे, एंटिसिपेटरी डालते रहते थे, तब तक गायब रहते थे. एंटिसिपेटरी फेल होने के बाद तब जाके आते थे, और अगर एंटिसिपेटरी ना मिली तो भाग ही जाते थे. कुछ हद तक इस प्रॉब्लम को कवर किया गया है जो न्यू बीएनएसएस है. इसलिए जो 482 बीएनएसएस है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं. जो पहले 438 जो एंटिसिपेटरी का है, सम चेंजेस हैव बीन मेड. चलिए पहले नया लॉ पढ़ते हैं जो एंटिसिपेटरी बेल का लॉ है. When any person has reason to believe, so that means ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. He merely has a reason to believe that he may be arrested on the accusation. So please remember, on the accusation लिखा है, on the suspicion नहीं लिखा है. एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ. On the accusation of having committed a non-bailable offense. So कहीं ना कहीं accusation होना चाहिए. FIR is an accusation. Complaint is an accusation. तो कहीं ना कहीं कुछ ठोस होना चाहिए. ये नहीं कि हवाई किले बना रहा है वो. That will not be allowed. That will not give you the benefit. He may apply to the High Court or the Court of Session. दो ही कोर्ट है जो एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं. फॉर अ डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट कोर्ट में, इफ इट थिंक्स फिट,
direct that in the event of such arrest, यानी arrest होगा, he shall be released on bail. In other words, the anticipatory bail pertains to what? It converts a non-bailable offense into a bailable offense. Subsection 2. When the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit. As I said, each case is different from each other. Hence, for each case, the High Court or the Session Court, as the case may be, may put up different conditions of anticipatory bail, including, for example, कौन सी हो सकती है? A condition that the person shall make himself available for interrogation by a police officer as and when required. तो जब जब आपको पुलिस बुलाएगी, आप जाओगे और आप हाजिर होगे, so that they can do it. अब ये जो था, ये पहले जो था हमारे पास, ये सबसेक्शन 2 जो 438 का है, ये as it is दिया हुआ है. Condition that the person shall make himself available for interrogation by police officer as and when required. इसमें कोई चेंज नहीं है, उसको as it is ले रहे हैं. B. A condition that the person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or to any police officer. ये भी था, ये भी as it is रखा हुआ है. Third, a condition that the person shall not leave India without the permission of the court. Fourth, any other condition as may be imposed under section 480 as if bail was granted under that section. जो जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं वो वाली कंडीशन, फॉर एग्जांपल सरेंडरिंग ऑफ योर पासपोर्ट वगैरह, वो सारी चीजें हम यहाँ रख सकते हैं. ऑल दोज थिंग्स कैन बी टेकन एज कंडीशंस. ये जो सबसेक्शन 2 हमने पढ़ा, ये एज इट इज है. हाउएवर, जो एक पहला पार्ट था वो सारा का सारा डिलीट कर दिया गया. पहले क्या लिखा था? पहले अगर मैं 438 में जाऊं, that the court may, after taking into consideration the following factors, nature and gravity of accusation वगैरह वगैरह, अब वो सब काट दिया क्योंकि जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है. तो हम क्यों जुडिशरी को बताएं ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना? उनको पता है, तो उन्होंने ये चीज काट ही. So now it has been left to total judicious discretion of the court without any parameters, without any specific instructions by the legislature. ये फर्क आया. I hope everybody is clear on the change. अब आगे चलते हैं सबसेक्शन 3. सबसेक्शन 3 जो है वो भी सेम है जो पुराना सबसेक्शन 3 था. If such person is thereafter arrested without warrant, एक बार मुझे बेल मिल गई एंटिसिपेटरी, if such person is thereafter arrested without warrant by a police officer in charge of a police station on such accusation and is prepared either at the time of the arrest or at any time while in custody of such officer to give bail. तो इसका मतलब है एंटिसिपेटरी बेल के बाद भी अगर मैं बेल की कंडीशंस पूरी नहीं करता तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगा डिस्पाइट द ऑर्डर ऑफ एंटिसिपेटरी बेल. सो बहुत क्लियर है कि जब उसको गिरफ्तार करेगा तो जो उसको बताई गई है टू गिव द बेल जो भी है, एंड इफ अ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स दैट अ वारंट शुड बी इशूड, नॉन बेलेबल का जो वारंट है, he shall issue a bailable warrant. अब जहां कंप्लेंट केस है फॉर एग्जांपल,
उसने बुलाना है नॉन बेलेबल वारंट भेजने नहीं, अब वो बेलेबल वारंट ही भेजेगा। ये इफेक्ट है एंटीसिपेटरी बेल का। सो एंटीसिपेटरी का बेल का जो इफेक्ट है वो सबसेक्शन 3 में दिया गया है। ए रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर, बी रिगार्डिंग मैजिस्ट्रेट। Magistrate will issue only a bailable warrant, whereas a police officer shall take bail, जो भी वो देना है। Normally conditions of bail are already given, so वो सारी चीजें already as per the orders of the court होते हैं। Now एक जो सबसेक्शन 4 है ये नया है, ये पहले नहीं था, ये अब इसमें आया है। Nothing in this section shall apply to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence of rape under section 65 or and subsection 2 of gang rape. तो दो में नहीं मिलेगा। सो याद रखना रेप के मामलों में, गैंग रेप के मामलों में, एंड ऑल्सो एक और बता सकता हूं जो लिखा नहीं है, पॉक्सो के मामले। तो इन तीनों में एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर इन दिस। अंजलि, जब हम उसको गिरफ्तार ही नहीं कर रहे हैं, जब हमने उसको बेल दे दी है, जब हाई कोर्ट ने बेल दे दी है, तो आप उसको गिरफ्तार कैसे करोगे? आप उसको वारंट भेजो, वो बेल दे देगा। या ऑल्सो इन शिराज, ऑल्सो मेनी अदर्स, SC/ST एक्ट में भी है, बहुत सारे। अब इसके बारे में वी हैव डिस्कस सर्टेन थिंग्स। पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट एक बताता हूं कि यूपी ने सेक्शन 438 जो है वो रिपील कर दिया, यानी देयर वाज नो एंटीसिपेटरी बेल फॉर मेनी इयर्स इन यूपी। फिर अभी ये इस सरकार ने उसको वापस रिकन्वर्ट किया है, अदरवाइज वो था। निधि, इट इज रिगार्डिंग द रेप कंडीशंस। यस, इट वाज रिज्यूम्ड इन 2023, करेक्ट। अब एक चीज और है, जब तक स्पेसिफिक एक्यूजेशन नहीं है, मियर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूजेशन, वो कभी, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है और उसमें बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं कि इसीलिए बेल पिटीशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी एक्यूजेशन नहीं हुई, अभी तक एक सस्पिशन है आपके माइंड में। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्यूजेशन, अब ये होने वाला है, मेरे खिलाफ FIR दर्ज होने वाली है, मेरे खिलाफ ये होने वाला है, that will not be enough to give you anticipatory bail. अब एक दो चीजें हैं जो मुझे क्लियर करनी, जो बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं और बहुत सारे वकीलों को भी करती हैं। एक बार आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, दोबारा बेल लेने की जरूरत नहीं है। The anticipatory bail continues till the end of the trial. So one thing you must remember, the duration of the bail is right till the end of the case. You don't have to take it again. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ब्लैंकेट बेल नहीं मांग सकते। व्हाट इज ब्लैंकेट बेल? ब्लैंकेट बेल का मतलब होता है कोई भी मेरे खिलाफ ऑफेंस हो, उसके उसमें पहले ही मुझे आप बेल दे दो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव था, धर्मदास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बहुत क्लियरली बोला गया दैट ब्लैंकेट बेल कैन नॉट बी गिवन एज अ रूटीन। ब्लैंकेट बेल जो होता है, दैट इज अ निगेशन ऑफ जस्टिस। एवरीबडी विल अदरवाइज मूव फॉर ब्लैंकेट बेल। इसीलिए देयर इज नो
provision of giving a blanket bail in this provision. So एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत सारे जजमेंट्स हैं कि there cannot be what we call a blanket bail. There is a important case, KL Verma versus State. This is 1996 Supreme Court. That blanket protection is untenable, और वो भी endless. इससे तो क्राइम बढ़ जाएगा. ब्लैंकेट बेल देने की पावर जो होती है वो नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट नेवर अप्रिशिएट्स. मामलों में अलग अलग बेल लो. यू कांट से ये एक्यूजेशन है सारों में इकट्ठे बेल दे दो. दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव टू we should not be giving and we cannot give blanket bails. Okay, पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या इजीली दे दी जाए? द आंसर इज नो. बहुत सारे जजमेंट्स हैं. जयप्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2012 सुप्रीम कोर्ट, परविंदर जीत वर्सेस चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 2009 सुप्रीम कोर्ट, और भी बहुत है जहां बहुत क्लियरली बोला है एक एंटिसिपेटरी बेल is an extraordinary privilege. It should be granted only in exceptional cases. एक और क्वेश्चन उठता है, यहां पे दोनों को पावर दी गई है, सेशन कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी. क्या ये कंकरेंट है जुरिसडिक्शन? दैट मीन्स क्या मैं सीधा पहले हाई कोर्ट जा सकता हूं? The answer is yes. There is no bar in moving the High Court without moving the Session Court. This matter has been covered in many High Court judgments and it is settled law now that this is a concurrent power. ये prelims का question है, ध्यान रखिएगा. But then अगर हम rules of procedure को छोड़ दें और law को छोड़ दें, एक जो नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स में ये क्लियर है कि पहले सेशन कोर्ट में आओ, सीधा मुंह उठा के हाई कोर्ट थोड़ा ना जाओगे. ये राजस्थान हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, उन्होंने ये चीज कही कि नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि कंकरेंट पावर्स हैं, बट अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट यू शुड फर्स्ट मूव द सेशन कोर्ट and then only you should be approaching the high court. हाँ सिराज, वो भी मैं कह रहा हूँ, वो नहीं करते वो अलग बात है, पर अगर हम कोई एक्सेप्शनल मामला हो तो हम जा सकते हैं. नो अंजलि, अगर एंटिसिपेटरी बेल जिन सेक्शंस के लिए दी गई है उनसे ज्यादा सीरियस कोई आ जाते हैं, देन दैट एंटिसिपेटरी बेल विल नॉट अप्लाई. ओके, प्लीज रिमेंबर एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कई लॉज में नहीं दी जाती. कुछ तो यहां लिख दी है उनने, एनडीपीएस में नहीं दी जाती, SC/ST एक्ट में नहीं दी जाती. तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं हमारे लोकल या स्पेशल लॉज जहां पे क्लियर प्रोविजंस है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी. नाउ बिफोर आई एंड, देयर इज अनदर प्रोविजन कॉल्ड इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल. ये क्या होता है? सी, जब तक सुनवाई, सपोज आज 1 तारीख है, मैंने आज अप्लाई किया, आई हैव अप्लाइड फॉर बेल, फॉर एंटिसिपेटरी बेल. कोर्ट कहता है आपका मामला अगले मंथ की 15 को, यानी 1.5 महीने बाद सुनेगी. तो 1.5 महीने में वो कहेंगे जी पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी.
तो एज अ रिजल्ट इस 1.5 महीने का जो इंटरग्राम है, जब मेरी सुनवाई होनी है, उसमें हम देते हैं इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल। ये पर कितने दिन के लिए लागू होती है? सिर्फ 1.5 महीने के लिए। ए। बी, इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल इज नो ग्राउंड कि मुझे इंटरिम मिल गई है तो अब बेल भी मिल जाएगी, एंटिसिपेटरी बेल भी मिल जाएगी। नो, इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के पैरामीटर्स और रीजंस बिल्कुल अलग होते हैं एंटिसिपेटरी बेल के। सो मेयरली बिकॉज यू हैव गॉट इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल is no guarantee that you will get anticipatory bail also. ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, परविंदर जीत सिंह वर्सेस स्टेट यूटी चंडीगढ़, 2009 सुप्रीम कोर्ट। और जो मैंने आपको बताया था कि एक बार एंटिसिपेटरी मिल गई वो थ्रू आउट होती है, उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक क्लैरिफिकेशन आया था। सिद्धराम महत्रे, ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। MEHETRE, सिद्धराम महत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2011 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें क्लियरली कहा गया that anticipatory bail is not granted for a limited period. Any accused who is released on anticipatory bail cannot be compelled to surrender before the trial court and again apply for bail के जी ट्रायल का टाइम आ गया। So जो हमारी ये एंटिसिपेटरी बेल है, it continues till the end of the trial, unless of course there is cancellation of bail because of fresh circumstances. For example, एक ज्यादा सीरियस हमने सेक्शन लगा दिया या और कोई ऐसे रीजन हो जाए, वो टेम्पर कर रहा है, वो लग पाते हैं। I hope everybody is now clear on this very very important matter. मैं जल्दी से महत्रे, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला महत्रे इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट्स। जैसे गुरबख्श सिंह सिबिया था, उसके बाद ये महत्रे जो है, सिद्धराम महत्रे, ये एक लैंडमार्क केस बना एंटिसिपेटरी बेल का। इसके मैं जल्दी से पॉइंट्स बोल देता हूं, इसमें गाइडलाइंस क्या क्या थे। महत्रे में इन्होंने बताया पहला कि while dealing with anticipatory bail, what all things will be kept in mind. पहला, of course, nature and gravity of the accusation. दूसरा, antecedents of the applicant. तीसरा, chances of the accused to flee from justice. चौथा, his likelihood to commit similar offenses or other offenses. Then, if we grant anticipatory bail, what will be the effect on society? In fact, while granting anticipatory bail, the courts are supposed to evaluate the entire available material against the accused very carefully. They must go through the exact role of the accused. For example, if he has a very important role in Section 34 IPC or criminal conspiracy, then court should be more cautious. Because जैसा कि to quote the Supreme Court, over implication is very common. पुलिस चाहती है जिसको भी है उसको अंदर डाल दो, तो ओवर इम्प्लीकेशन हो जाता है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, कहीं ओवर इम्प्लीकेशन तो नहीं है। जब भी एंटिसिपेटरी बेल देनी है, व्हाट हैज टू बी केप्ट इन माइंड, बैलेंस बिटवीन द फैक्ट दैट देयर इज नो अननेसेसरी हरासमेंट ऑफ द एक्यूज्ड एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सोसाइटी अगर हम दे देते हैं। Also, we have to see the reasonable threat. If given bail, will he tamper with witnesses? Will he tamper with evidence? And lastly, how frivolous does this accusation appear to be? Or how frivolous does the prosecution
appear to be. No, Kashish, the court which grants a bail cancels. So अगर कैंसिलेशन करना है एंटिसिपेटरी का तो सेशन कोर्ट कर सकता है या हाई कोर्ट कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है, कंकरेंट पावर्स है. Okay, I hope now everybody is clear on this entire law. Who defends? Anticipatory bail. पीपी आता है, पीपी करेगा. Okay. I hope now everybody is clear on all these aspects and everybody is clear on the entire law of anticipatory bail and the two most important judgments, पुराना सिदिया का, गुरबख्श सिंह का, और नया वाला महत्रे का. Okay. You'll have to excuse me, I have a little bad cold. तो आवाज में आ रहा होगा. Just excuse me, just don't bother about that. वो चलता रहता है. Okay. Now we have gone through bailable offenses, non-bailable offenses, anticipatory bail. अब हम चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 483 जो पुराना हमारा सेक्शन 439 सीआरपीसी था. लेट्स सी ये क्या कहता है, ये क्या है, ये क्यों है. As I told you yesterday, जो जितना भी हमारा बेल का मामला है ये ना तो अपीलेबल है ना ही ये रिवाइजेबल. इट्स एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर एंड इट्स नॉट अपीलेबल, इट्स नॉट रिवाइजेबल. और कहीं अपील नहीं दी हुई तो इट इज नॉट अपीलेबल. बट एक तरफ तो ना रिवाइजेबल ना अपीलेबल और एक तरफ ये मेरा फंडामेंटल राइट है, लिबर्टी. इनको बैलेंस कैसे करें. तो हम अपील नहीं बनाएंगे ना ही रिवीजन करेंगे. हम एक नया सेक्शन क्रिएट कर देते हैं जहां पे हम सेशन जज को या हाई कोर्ट को मैजिस्ट्रेट के बराबर की कंकरेंट पावर्स दे देते हैं. कंकरेंट यानी आज अगर मेरे मैजिस्ट्रेट ने मेरी बेल रिजेक्ट कर दी, I will go to session court or I can even go to high court. Why? Right to liberty is my most fundamental right. So let's see this section जो बेसिकली एक सेवियर बन के आता है. अगर ये सेक्शन ना होता तो हम ट्रायल कोर्ट के पैर ही पकड़ते रहते कि सर प्लीज बेल ले लो. और ट्रायल कोर्ट को डर भी ना होता क्योंकि ना रिवीजन है ना अपील है. वो तो बिल्कुल हिटलर बन जाते. उनको कंट्रोल करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन. चलिए देखते हैं इस सेक्शन को. हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशन may direct that any person accused of an offense and in custody be released on bail. irrespective कौन है, कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं. तो बाई चांस सेशन कोर्ट भी है तो हाई कोर्ट आदेश दे देगा छोड़ो जी इसको. कोई मैजिस्ट्रेट का मामला है तो दोनों दे सकते हैं. And if the offense is of the nature specified in subsection 3 of 480, जो भी हमने पढ़ा, in that case, यानी कि कौन सा है, not death, not life, 7 साल ऊपर पढ़ा है ना हमने subsection 3 में, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection. वो अपनी कंडीशन लगा के आपको बेल दे सकता है. B, that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail
बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। ये क्या है? ये रिवीजन नहीं है तो क्या है? तो कोई भी कंडीशन अगर बहुत कड़क लगा दी है मैजिस्ट्रेट ने, तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, सेट असाइड भी कर सकता है। सो मैजिस्ट्रेट विल नाउ बी वेरी केयरफुल। और इवन सेशन कोर्ट, ये मैजिस्ट्रेट वर्ड खास लिखा हुआ है, आप देखिए। सो मैजिस्ट्रेट अब बहुत ध्यान से रखेंगे। उनको पता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, सीधा ऊपर चले आएंगे, वहां से लेके आ जाएंगे। सो यू अंडरस्टैंड? ना लिख के हम सीधा कान नहीं पकड़ के, हम घुमा के कान पकड़ रहे हैं। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड नाउ कि इट इज एक्चुअली देखा जाए तो रिविजनल पावर्स ही हैं रिगार्डिंग मैजिस्ट्रेट। बी सी, provided that the High Court or any court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session, or which, though not so triable, is punishable with life imprisonment, give notice of the application for bail to the PP, unless it is for reason to be recorded opinion that is not practicable to give such notice. जब भी मामला हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में जाए, बेल देने से पहले ऑलवेज एडवाइजेबल कि पीपी की बात सुनी जाए। जरूरी नहीं है, पर बाई चांस टाइम नहीं है और हमने पीपी को नहीं दिया तो भी हो सकता है। बहुत बार हम जाते हैं हाई कोर्ट से सीधा ऑर्डर लेके आ जाते हैं, पीपी नहीं आता और पीपी को बुलाते भी नहीं। तो वो ये उस प्रोवाइजो की वजह से बहुत बार मेरे से पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर वो वहां से बेल करा के ले आए, वहां तो पीपी को भी नहीं बुलाया। यहां लिखा हुआ है कि उसको कब बुलाना है, कब बुलाना कब जरूरी है, इज पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर हो गया? ओनली जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उससे ऊपर हो तब जाके मैंडेटरी हो जाता है उसको बुलाना। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। सब सेक्शन 2 एक और प्रोवाइडेड फर्दर आ गया जो पहले नहीं था। In 483 there is a new proviso, provided further that the High Court or Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused under 65 rape or group gang rape, give notice of the application for bail to PP. रेप के मामलों में पीपी को बुलाना जरूरी है। सो एक चीज क्लियर हो गई कि लाइफ इंप्रिजनमेंट से जो भी पनिशेबल है या सेक्सुअल ऑफेंसेस है उनमें पीपी को बुलाना जरूरी है बिफोर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन बेल देता है। इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस प्लीज? एवरीबडी क्लियर? चलिए अब आते हैं हम सबसेक्शन 2, जो भी नया है, जो पहले नहीं था, जो अब हुआ, ये भी इसमें ऐड हुआ है। सो लेट्स सी ये क्या कहता है। सबसेक्शन 2, the presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of application for bail to a person accused of rape or gang rape. So rape या gang rape of minor के टाइम पे it is necessary कि जिसने भी FIR दर्ज कराई है या कोई अगर वो खुद नहीं आ सकती तो उसकी जगह जिसको उसने ऑथराइज किया है वो बेल के टाइम पे प्रेजेंट हो हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट। ये न्यू गाइडलाइंस है। सबसेक्शन 3, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगेन ये सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स में आते हैं, बी वेरी केयरफुल। A high court or court of session may direct that any person who has been released on bail under this chapter, इस चैप्टर में क्या क्या है, बेलेबल भी है, नॉन बेलेबल भी है, be arrested and commit him to custody। तो इसका मतलब हो गया जो हमारा ये सबसेक्शन 3 है उसके अंदर कैंसलेशन ऑफ ऑल बेल्स, ए बेलेबल, बी नॉन बेलेबल एंड सी एंड थर्ड एंटीसिपेटरी बेल।
सो तीनों को कवर करता है, तीनों में कैंसिलेशन इस सेक्शन में हो सकती है। अब बेलेबल ऑफेंस की कैंसिलेशन वहां नहीं दी गई थी बाय द मैजिस्ट्रेट, हाउएवर इस सेक्शन में है। नॉन बेलेबल की उसी सेक्शन में भी दी हुई थी, यहां भी हो सकती है। और एंटीसिपेटरी भी कब कैंसिलेशन वहां नहीं दी गई थी, यहां हो सकती है। इज एवरीबडी नाउ क्लियर ऑन दिस? एवरीबडी क्लियर? ओके, अब यहां पे मुझे एक चीज बात करनी है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस इन द वर्ड refusal of bail and cancellation of bail. इन दो वर्ड्स में फर्क है। रिफ्यूजल का मतलब होता है कि मैंने दी नहीं आपको, अब दोबारा आ जाओगे। कैंसिलेशन मींस मैंने दे दी थी और आपका ऐसा कॉन्डक्ट रहा है कि मुझे कैंसिल करनी पड़ी। दिस इज अ फार मोर सीरियस थिंग देन रिफ्यूजल। सो याद रखना, रिफ्यूजल एंड कैंसिलेशन स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग्स। रिफ्यूजल दोबारा, एक बार रिफ्यूज हो गया, दोबारा हम ऊपर चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। कैंसिलेशन में दोबारा नहीं मिलती, खास ख्याल रखना। ये पूछा गया एग्जाम में, तभी मैंने कहा कैंसिलेशन कैन नॉट बी, इज नॉट सिनोनिमस विद रिफ्यूजल। दोनों बिल्कुल अलग हैं और दोनों का जो लॉ है वो भी अलग है। रिफ्यूजल कैन बी ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, भाग जाएगा, टैंपर करेगा एविडेंस को। कैंसिलेशन का ग्राउंड क्या होता है? गड़बड़ कर चुका है, कल जाके धमकाया है, ऑफेंस कर दिया है। So these are much more serious things. So cancellation stands at a different footing from refusal. Okay. अब एक चीज और हम यहां बात कर लें। पहले हमने पिछली बार बात की थी इंटरिम की। इंटरिम वर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर द टाइम बी। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरिम बेल, यानी जब तक मेन मुद्दा बेल का डिसाइड नहीं होता तब तक की बेल। सो वी मस्ट रिमेंबर, interim bail is granted pending the final disposal of the bail determination. नॉर्मली इंटरिम बेल हर जगह नहीं दी जाती। ज्यादातर जो ऑफेंसेस ट्रिवियल होते हैं, या विमेन है, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्जाम है, केसेस सीधा ही प्राइमा फेशी फ्रिवुलस लग रहे हैं, ऐसे मामलों में इंटरिम बेल दी जाती है। Interim bail, again, as I told you, is no guarantee that since interim bail was granted, hence final bail will also definitely have to be granted. I hope everybody is now clear on all these aspects. Okay. चलिए, अब एक चीज और मैं बताऊं, जहां तक कैंसिलेशन का सवाल है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि रिफ्यूजल और कैंसिलेशन का फर्क क्या है। कैंसिलेशन ऑफ बेल कौन अप्लाई कर सकता है? स्टेट भी कर सकती है, एग्रीव पार्टी भी कर सकती है, या सुओ मोटो भी कोर्ट कर सकती है, तीनों हो सकते हैं। सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए कोई भी मूव कर सकता है। अभी बोल चुका हूं अंजलि, तो देख लीजिएगा। ओके, आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर ऑन द एंटायर लॉ ऑफ दिस न्यू लॉ, न्यू पार्ट्स ऑल्सो। एंड ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है 483, बिकॉज
It deals with basically the revisional powers regarding bail. चलिए, यहां तक था हमारा पूरा लॉ बेल का. अब हम आते हैं बॉन्ड्स पे. जहां तक बॉन्ड्स का सवाल है, पहले कंफ्यूजन था क्योंकि पहले क्लियर नहीं किया गया था, डिफाइन नहीं की गई. बट जब हमने डेफिनेशन देखे सीआरपीसी में, आई मीन बीएनएसएस में, जो डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दिए गए थे यहां दिए गए. अगर हम सेक्शन 2 के डी और ई में आए, बेल बॉन्ड मीन्स undertaking for release with surety. Bond means a personal bond or undertaking without surety. Without surety bond होता है, personal bond कहते हैं जिसको, और with surety bail bond होता है. Surety please remember money भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं. अब इसको दिमाग में रख के अब देखते हैं बॉन्ड्स का लॉ क्या है. पहले हम लेते हैं एवरीबडी क्लियर ऑन द एंटायर लॉ ऑफ बेल. किसी को कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग बेल? हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है, बेलेबल, नॉन बेलेबल एंड एंटिसिपेटरी, एंड ऑफ कोर्स द रिविजनल पार्ट. चलिए, लेट्स गो ऑन टू सेक्शन 484. One common thing is that in case the bond which we are putting is too excessive, it would definitely lead to dereliction of justice. That means amount of bond should neither be too excessive nor too lenient. ये ना हो कि इतना lenient हो accused भाग ही जाए. And at the same time, it should not be so excessive कि वो पूरा कर ही ना पाए. Yes, Ashna. Though we do not have to write, we ये नहीं लिखते कि उसने रिजेक्ट कर दिए, हम सीधा ये डाल देते हैं that we had already applied for bail, because otherwise they will say ना नीचे जाओ, क्यों नीचे पहले उसको ट्रायल कोर्ट में गए इसलिए. चलिए अब बॉन्ड्स का लॉ देखते हैं. The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. तो the bond का सीधा कनेक्शन है circumstances of the case. More serious the case, heavier the bond. But in any case, it will not be excessive. नहीं तो it will amount to denial of bail. Subsection 2. The High Court or Court of Session may direct that the bail required by a police officer or magistrate be reduced. So another aspect हो गया कि bail may be reduced. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. जो 484 का सबसेक्शन 2 है. तो सपोज हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैजिस्ट्रेट का, और पिछले हमने सेक्शन में पढ़ा था that condition may be set aside or modified. अब ये स्पेसिफिकली बॉन्ड का है कि जो बॉन्ड बोला है मैजिस्ट्रेट ने उसको रिड्यूस करो. उसने बोला 2 लाख का मुचलका, उनका नहीं 50,000 का मुचलका काफी है. दे कैन डू दिस ऑल्सो. फॉर दिस पर्पस ये इस सेक्शन में आता है. सो एक चीज याद रखना, जो 483 में हमने पढ़ा वो एक जीनस है, वो कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है. ये स्पेसिफिकली बॉन्ड से डील कर रहा है 484 सबसेक्शन 2 में. I hope everybody is clear on this section. We now go to section 485.
before any person is released on bail or released on his own bond, a bond for such sum of money as the police officer or the court, as the case may be, thinks sufficient, shall be executed by such person, and when he is released on bail by one or more, sufficient surety is conditioned that such person shall attend at all time and place mentioned in the bond, and shall continue so to attend until otherwise directed by the police officer or court, as the case may be. So basically ये section 485 का subsection 1 deals with all the aspects of a bond. कि बॉन्ड होता क्या है, क्या करेगा. तो जब भी कोई आदमी को हम रिलीज करते हैं बेल पे या अपने बॉन्ड पे या पैसे के ऊपर, तो उतना बॉन्ड उससे मांगा जाएगा, उतनी श्योरिटी मांगी जाएगी जो काफी होगी उसको ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि वो रेगुलरली अटेंड करे कोर्ट को, वो भाग ना जाए. और जब तक कोर्ट उसको अलाउ नहीं करता तब तक वो लगातार अटेंड करेगा. सो बेसिकली चाहे इन्वेस्टिगेशन का टाइम हो, चाहे ट्रायल का टाइम, यू विल हैव टू अटेंड. इसी बात का मैं बॉन्ड दे रहा हूं. सो आई विल, पहला बॉन्ड किस चीज का हो गया कि जी मैं हमेशा आऊंगा, जब भी आप बुलाओगे आई विल बी प्रेजेंट. सबसेक्शन 2, where any condition is imposed for the release of any person on bail, the bond shall also contain that condition. अब अगर हमने कोई कंडीशन लगा दी, तुम उस मोहल्ले में नहीं जाओगे, तुम थाने में हर महीने, हर हफ्ते एक बार या 10 दिन में एक बार जाओगे, जो भी है, तुम टैंपर नहीं करोगे वगैरह. तो और भी मैं तो हमारे बेसिक चीजें क्या होगी. पहला क्या हो गया कि आई विल बी प्रेजेंट ऑलवेज, जब भी आप जहां बुलाओगे. बी, एनी अदर कंडीशन, दोनों चीजें हो सकती है, एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, डिपेंडिंग कैसा आदमी है. थर्ड, if the case so requires, the bond shall also bind the person released on bail to appear and when called at the High Court, Court of Session or any other court. अब सब. और तीसरा कि ये बॉन्ड सिर्फ मेरे ट्रायल कोर्ट का, मैजिस्ट्रेट का नहीं है. अगर हाई कोर्ट ने बुलाया या सेशन कोर्ट ने बुलाया तो तब भी तुम जाओगे. तो सिर्फ प्रेजेंट मेरे यहाँ के लिए नहीं है, इन दो कोर्ट्स के लिए, उसके लिए भी बॉन्ड हम भरवा लेते हैं. Subsection 4, for the purpose of determining whether the sureties are fit or sufficient, the court may accept affidavits in proof of the facts contained therein relating to the sufficiency and fitness of the sureties, or if it considers necessary, may either hold inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to it. अब नेचुरली श्योरिटी का मुझे क्या पता, मैं ला रहा हूं ना, मैं एक्यूज हूं, मैं उसको लेके आ रहा हूं, तो क्या गारंटी है. तो अब वो कहता है जी ठीक है, मैं बड़ा जी, मेरी तो 5 कोठियां हैं, मैं ये आई एम अ वेरी गुड श्योरिटी. क्या प्रूफ है, पता चला झोपड़ी में रहता है. तो इसीलिए हम जो भी श्योरिटी की बातें होती हैं वो अंडर एफिडेविट लेते हैं. सो वी टेक एन एफिडेविट एंड नाउ वी अकॉर्डिंगली ट्रीट. तो ये 4 चीजें होती हैं. तो ये सेक्शन जो भी हमने पढ़ा, this is basically all about a bond including sureties. You know, एक चीज याद रखना कि बॉन्ड जो होता है इट शुड, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल को अगर बॉन्ड मैंने नाम भरा ना, मैंने फॉलो किया, तो वी कैन बी रीअरेस्टेड. इसीलिए बॉन्ड शुड नेवर बी वेग, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड अ डिफेक्टिव बॉन्ड. सो मोस्टली जो होते हैं बॉन्ड्स, वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर वेग हुआ, कल को मैं उस वेगनेस का फायदा उठा लूंगा कि जी आपने तो ऐसे लिखा, मुझे लगा ऐसा है. एक चीज और है, श्योरिटीज जो होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनको इम्प्रिजन किया जा सकता है.
यानी कि juristic persons cannot stand as surety. ये मामला बहुत पहले पंजाब हाई कोर्ट में आया था, एडमंड वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, एडमंड वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1967 पंजाब हाई कोर्ट। इसमें ये चीज क्लियर की गई कि श्योरिटी वो होनी चाहिए ना, जो अगर वो भाग गया तो श्योरिटी को हम पकड़ के अंदर कर दें। अब एक कंपनी को कैसे अंदर करोगे, एक जुरिस्टिक पर्सन को अंदर कैसे करोगे? सो श्योरिटीज मस्ट बी ऑफ ऑल सच पर्सन्स who can be imprisoned in case of default, and that is the reason why surety bonds cannot be executed against juristic persons. I hope everybody is clear on this aspect. अब हमने अभी देखा कि एफिडेविट देंगे श्योरिटी। अभी हमने देखा ना कशिश कि पिछले सेक्शन में देखा दैट मॉडिफिकेशन हो सकता है, और इसमें हमने देखा कि वो उसको कम कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि कैंसिल तो क्यों होगा, फिर हम छोड़ेंगे क्यों उसको? अगर हम कैंसिल ही कर रहे हैं तो फिर छोड़ेंगे क्यों? और आगे जाके फिर कैंसिलेशन आएगा ऑर्डिनरी कंडीशंस। हमने देखा कि श्योरिटीज को naturally they have to give an affidavit. So what will be the declaration by sureties? Let's see section 486. Declaration by sureties. Every person standing surety to an accused person for his release on bail shall make a declaration before a court as to number of persons to whom he has stood surety, including the accused, giving all relevant particulars. अब ये जो सेक्शन है ये हमें मदद करता है कि उन लोगों से बचें जो पैसे लेके श्योरिटी बनते हैं। यू नो देयर इज अ कंप्लीट एक रैकेट है। वो रैकेट क्या है कि हर जगह आप पैसे देके श्योरिटी बन जाते हैं, एंड दिस रैकेट इज कॉमन ऑल ओवर इंडिया। एज ए रिजल्ट क्या होता था कि आप पैसे दो, मैं आपको जानता भी नहीं, वो कहता है जी मैं 1 लाख की श्योरिटी बन जाता हूँ, 1 लाख मुझे पहले दे दो, आप भाग गए तो, और नहीं भागे तो वापस ले लेना, और अभी की मेरी फीस 10,000 है। तो वो 1,10,000 ले लेता था आपके लिए। वो बोलता था कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके लिए श्योरिटी बैठ रहा हूँ, 1 लाख की श्योरिटी बैठ रहा हूँ। कल को आप भाग गए, 1 लाख देना पड़ेगा, वो पहले ले लिया मैंने आपसे। तो ये एक बड़ा डेंजरस प्रोसीजर था, और अभी भी है, ये नहीं कहता कि खत्म हो गया, अभी भी बहुत है। उस चीज को चेक करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया कि आप पहले बताओ किन किन लोगों के लिए श्योरिटी बैठ रही है, इंक्लूडिंग इसके लिए। पता चला 10 केस चल रहे हैं इसके, तो आप 10 में आप ही श्योरिटी बैठे। सो यू हैव टू नाउ डिक्लेयर कि आप और किसी केस में श्योरिटी नहीं हो तो एक और, चलो एक आधा केस तो हो गया, बट आप कोई स्टॉक श्योरिटी नहीं हो, जिसको हम कहते हैं स्टॉक श्योरिटी। स्टॉक विटनेस होता है ना, ऐसे स्टॉक श्योरिटीज भी होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है टू एंश्योर कि जो ये श्योरिटीज है ये स्टॉक श्योरिटीज ना बन जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है वो आप पैसे ले लेते हैं। ऐसी श्योरिटीज जो हैं वो कभी इम्प्रिजनमेंट का नहीं बनते कि अगर ये भाग गया तो तुझे बंद कर देंगे, वो नहीं मानते। वे ना फिर मैं नहीं बैठता। हाँ, पैसे की, नॉर्मली पैसे की श्योरिटी होती है, तो दे विल ऑल सिट फॉर दैट। उस चीज को ये बहुत अच्छा लॉ है जो बचाता है, और इसीलिए इस लॉ से ये 2000, ये पहले नहीं था, ये 2005 में ऐड हुआ, विच इज अ वेरी वेलकम चेंज टू CRPC. I hope everybody is clear on this law. We now go on to section 487. हाँ, तभी तो चिंटू कोई भी श्योरिटी नहीं बैठेगी ना आपके लिए। अगर मैं ये कहता हूँ श्योरिटी को कि अगर ये भैया भाग गया तो तुझे अंदर कर देंगे, तो यहाँ तो आपके माता पिता होंगे जो आपके लिए बैठने को तैयार होंगे।
और तो कोई नहीं आने वाला। पर अगर मैं बेल कह रहा हूं कि ओके 1 लाख रुपए का मुचलका ले आओ, 1 लाख रुपए का बॉन्ड ले आओ, भर दो, तो मैं ठीक है, मैं भर दूंगा, आपसे 1 लाख ले लूंगा कि तू भाग गया, मुझे क्या पता, जेब में लाख रखूंगा, 10,000 आज के अपेयर होने के और जो हाँ करने के 10-20,000 ले लूंगा, और अब आप भाग भी गए तो 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा है, वो मैं दे दूंगा। आई होप एवरीबडी इज नाउ क्लियर ऑन दिस। चलिए अब देखते हैं डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, सेक्शन 487। As soon as the bond has been executed, the person for whose appearance it has been executed shall be released. अब जैसे ही बॉन्ड भरा तो जिसके लिए बॉन्ड भरा है वो रिलीज, उसका नेचुरली अब उसका अब हम रिलीज कर देंगे। And if he is in jail, the court admitting him to bail shall issue an order of release to the officer in jail. और फिर अगर वो जेल में है तो जो भी जेलर होगा उसको हम भेज देंगे ऑर्डर कि भैया इसका बेल हो गया, इसको रिलीज कर दो। एंड सच ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ द ऑर्डर, जैसे उसको ऑर्डर मिलता है वो रिलीज कर देंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन or in 478 and 480 shall be deemed to require the release of any person liable to be detained for some other matter other than in which the bond is executed. अगर वो बाकी मामलों में इन्वॉल्व है जिनमें बॉन्ड मिला है उनके अलावा, तो उनके अंदर तो अंदर रहने वाला है ना ये। सपोज 2 केस है, एक केस में उसको बेल मिल गई, वो बॉन्ड भर गया, दूसरे में कुछ नहीं हुआ, इसमें तो बेल मिल गई है इसको, इसमें तो अंदर ही है ना वो अभी। तो दैट इज द रीजन व्हाई मेयरली क्योंकि एक केस में उसने बॉन्ड भर दिया है डज नॉट गिव हिम अ राइट टू बी रिलीज्ड, बिकॉज इस केस में तो अंदर ही है ना वो अभी। तो दोनों केस में जब तक नहीं लाएगा तब तक उसको रिहाई नहीं मिलेगी। We now go on to section 488 corresponding to 443. If through mistake, fraud or otherwise insufficient sureties have been accepted, or if they afterwards become insufficient, पहले बहुत अमीर था, जुए में हार गया रातों रात, the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before him and may order him to find sufficient sureties, and if he fails, may commit him to jail. अब जो श्योरिटी मेरी थी उस टाइम तो बड़ा नाटक कर रहा था, बाद में पता चला वो तो सब फ्रॉड था, या जैसे कि मैंने बोला उस टाइम ठीक था, बाद में गरीब हो गया, अब क्या करें? तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, वो श्योरिटी है ना उसकी, तो जिसकी श्योरिटी है उसको बुला लेंगे, उसको कहेंगे भैया तेरी श्योरिटी फेल हो गई, या तो तू नई श्योरिटी लेके आ, नहीं तो अंदर जा, अपने आप लाएगा वो। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सो जहां पे श्योरिटी कम है या श्योरिटी जो है वो बाद में इनसफिशिएंट हो गई, कोई बात नहीं, हमने जिसकी श्योरिटी पे बैठा है, जो अक्यूज्ड है, उसको बुला लेंगे कि तेरी सिक्योरिटी तो इनसफिशिएंट हो गई, नहीं लेके आओ, नहीं तो जाओ। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन ऑल दीज मैटर्स। We now go on to 489, discharge of sureties. All or any sureties for the attendance and appearance of a person released on bail may at any time apply to magistrate to discharge the bond either wholly or so far as it relates to the applicants. Once मैं आपकी श्योरिटी बन गया, जरूरी नहीं है कि मैं सारी उम्र बना रहूंगा। मुझे लगता है आप कोई गड़बड़ कर रहे हो, मैं आप गलती से आपका श्योरिटी बन गया, भैया मैं कोर्ट में आऊंगा और कहूंगा बात सर मैं तो इस भाई साहब की नहीं बनने वाला, आई एम रिसेंडिंग, मैं तो नहीं बनूंगा। अब नेचुरली ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं किसी का श्योरिटी नहीं कैंसिल करना चाह रहा हूं तो उस बंदे को लेके आऊंगा। ये तो बड़ा सिंपल है, मैं आपका श्योरिटी बना, उसके बाद मैंने कहा तू तो भाग जा, और अब मैं कोर्ट में गया, मैंने कहा कि मैं तो नहीं बनता उसका श्योरिटी, उसको भगा भी दिया। इसीलिए प्लीज रिमेंबर, आपकी श्योरिटी तब तक कैंसिल नहीं होगी जब तक आप उस बंदे को कोर्ट में नहीं लाओगे जिसके लिए आप श्योरिटी बैठे हो।
यही चीज ये सेक्शन बताता है। टुडे वी रन आउट ऑफ टाइम, हम इसी सेक्शन से कल दोबारा शुरू करेंगे। विल टेक इट अप फ्रॉम हियर, वी मीट इन 15-20 मिनट्स फॉर हिंदू लॉ। नहीं, वो अलग चीज है, वो तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस वो एक अलग है, जो हम कह सकते हैं इसकी एक स्पीशी है, बिकॉज बेसिकली वो बेल नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी बेल है आपको, जब तक आप अपील नहीं डाल रहे। सी यू ऑल इन 15 मिनट्स।